اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم سورۃ آل عمران سورۃ آل عمران ہم شروع کرنے لگے ہیں، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آج کی سمری کا مین ٹاپک ہوگا کمپیریزن اور کنیکشن بٹوین سورۃ آل عمران اینڈ سورۃ نساء۔ دونوں مدنی صورتیں ہیں، وے مور امپورٹنٹ مدنی صورتیں ہیں جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کی فیملی کے بارے میں بات کرتی ہے، اور دوسری صورت نساء نام کے ساتھ ہی ہے، خواتین کی بات کرتی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان کیا کنیکشن ہے اور ان کا سورۃ بقرہ سے اور سورۃ فاتحہ سے کیا کنیکشن ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور تھیم ہماری وہی ہے کہ خوف اور ڈپریشن پر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں، اور کون سے خوف وہ ہیں جو مبارک ہیں، جو ہونے چاہیے۔ وہ خوف ہمیں بچا لیں گے اس خوف سے جو خدا نخواستہ ہمیں ہیل فائر تک، جہنم کی آگ تک لے جائیں۔ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ آل عمران 200 آیات ہیں، اور اس کا ٹائم جو ہے ریویل ہونے کا وہ 2 ہجری ہے، آفٹر احد۔ سورۃ بقرہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ پوسٹ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ بدر میں کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی یا شکست؟ فتح ہوئی تھی۔ اور سورۃ آل عمران آفٹر احد ہے، اور احد میں کیا ہوا تھا؟ شکست سے بھی زیادہ بڑا زخم اللہ نے کر کی بات کی، اس میں تمہیں زخم لگایا۔ اور کر عربی میں لٹرل میننگ اس زخم کو کہتے ہیں جو اتنا گہرا ہو کہ آپ کے گوشت سے ہوتا ہوا ہڈیوں تک پہنچ جائے، جہاں ہڈیاں ہرٹ ہو جائیں اس کو کر کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جب شکست کے دن آئیں گے، جب مصیبت کے دن آئیں گے، تب ان میں کیسے ریئیکٹ کرو گے اور کیسے اپنا اللہ کے ساتھ رابطہ برقرار رکھو گے، یہ سورۃ آل عمران ہمیں بتاتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں کہا گیا کہ تمہیں ضرور آزماؤں گا ان چیزوں سے، اور سورۃ آل عمران میں آزما لیا اللہ نے۔ وہ تھیوری ہے تو یہ پریکٹیکل ہے۔ وہاں اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں ضرور آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون یا راشدون۔ اللہ کا میرے بشی معاف کرے، مہتدون ہے شاید۔ تو اللہ نے یہ بتایا تھا کہ میں ضرور آزماؤں گا، اور مسلمانوں کو بتایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ٹھیک ہو تو ہر ٹائم تمہیں فتح بھی ملے۔ میں نے آزمانا تو ہے نا تمہارے گریڈز بڑھانے کے لیے۔ اور یقین کریں ایمان خوشی کے دنوں میں اتنا بلٹ نہیں ہوتا جتنا مصیبت کے دنوں میں۔ کنیکشن، ایمان اگر اللہ کے ساتھ کنیکشن کا نام ہے تو مصیبت کے دنوں میں بلٹ ہوتا ہے۔ اللہ جو کنیکشن جس گریڈ تک ہمارے ساتھ بلڈ کرنا چاہتا ہے وہ اسی لیے ہماری زندگی میں اس سٹینڈرڈ کی آزمائشیں لاتا ہے۔ اگر آپ کی آزمائش بڑی ہے تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا گریڈ آپ کو بہت بڑا ملنے والا ہے، یہ اللہ پاک نے بتایا۔ دس از دا کی میسج آف دیز سورہ۔ ابھی میں آپ کو سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کا کنیکشن بتا رہی ہوں، آگے ہم کریں گے۔ میں نے جو کہا مین سمری کی تھیم کیا ہے؟ کنیکشن بٹوین آل عمران اینڈ نساء۔ یس، اچھا آج میں آپ کو سورت کی ڈیفینیشن میں، جیسے پہلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم قرآن اس تھیم کے ساتھ پڑھیں گے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے قرآن کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلی تقسیم تھی مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دیر آر 90 مکی سوراز اینڈ 24 مدنی سوراز۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ مکی صورتوں کا مین ٹاپک کیا ہوگا؟ اللہ اور ایام اللہ، ہسٹری، فیوچر اینڈ فیئر آف اللہ، اور اللہ کی نعمتیں، فیورز آف اللہ، ٹھیک ہے۔ اور مدنی صورتوں کا کیا ٹاپک ہوگا؟ مین ٹاپک، یہ دونوں تو ساتھ آئیں گے، اس کے احکامات،
अहकामात क्या है? जस्टिस करना है, आपस में एक दूसरे के साथ सब्र करना है, राब्ता रखना है. तो दीज आर द ऑल मेन टॉपिक्स ऑफ मक्कन एंड मदनी कुरान. आज मैं आपको बताने लगी हूँ, मैं छोटा छोटा चंक कुरान की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको रोज़ कब बताती रहूँगी. सूरा की डेफिनेशन क्या है? तो सूरा किसे कहते हैं? सूरा का लिटरल मीनिंग याद रखिएगा. सूरा कहते हैं एक फसील को, जो शहरों के गिर्द बाउंड्री वॉल होती है ना, उसको सूरा कहते हैं. फलां शहर की फसील, आपने मुल्तान शहर की फसीलें देखी हैं? मुल्तान के जो दरवाजे हैं उनके साथ बड़ी बड़ी दीवारें हैं. जब आप नीचे ट्रेवल करते हैं बोहड़ गेट वाली साइड, पार्क गेट वाली साइड, तो आपको वो दीवार नज़र आ रही होती है. किले पर जाएं तो वो नज़र नहीं आती क्योंकि आप खुद हाइट पे होते हैं. जो किले के गिर्द दीवारें, जो शहर जब बसता है तो उसके गिर्द जो बाउंड्री वॉल उसकी सेफ्टी के लिए दी जाती है, उसको सूरा कहते हैं. दिस इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ सूरा. अब जब शहर बसता है उसमें क्या होता है? शहर में स्कूल होते हैं, मदरसे होते हैं, शहर में हॉस्पिटल होते हैं, शहर में कॉलेजेस होते हैं, शहर में कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, शहर में फायर ब्रिगेड वाला भी होता है, मतलब उनका ऑफिस भी होता है, उनके इक्विपमेंट्स भी होते हैं, सियासतदानों के भी ऑफिसेज होते हैं जो आपको लीड वो कर रहे होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, वो भी होते हैं हर शहर में. हर शहर में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं. होता है ऐसा. पार्क्स होते हैं, एरियाज़ होते हैं. तो हर सूरा अपने अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट है, एक पूरा मुकम्मल शहर है. ये नहीं है कि एक सूरा को समझने के लिए हमें दूसरी सूरा की ज़रूरत पड़े. एक दूसरे की तायीद ज़रूर करती हैं, कनेक्शन ज़रूर है. जैसे मुल्तान के साथ शहर कौन सा है? बिहाड़ी होगा, लाहौर होगा. मतलब जो शहर साथ साथ हैं वो कल्चरली कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं. जैसे खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद है या मरी है या मानसेरा है, तो वो आपस में कहीं ना कहीं उनका कल्चर, उनकी चीज़ें मिलती जुलती होंगी. लेकिन एक शहर को समझने के लिए जैसे दूसरे शहर की ज़रूरत नहीं है. एक शहर दूसरे शहर को कंप्लीट नहीं करता. ऐसे कुरान का ये मौजज़ा है कि एक सूरत, अगर आप सूरत कौसर को भी समझना चाहें तो वो इट्सेल्फ मुकम्मल है, आप उसको समझ सकते हैं. उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरे कुरान को पहले समझेंगे तब सूरत कौसर समझ में आएगी. ऐसा नहीं है. जैसे सारे शहर कनेक्टेड होते हैं, कनेक्शन पूरी इस दुनिया पर अपना कनेक्शन बनाते हैं, लेकिन इंडिविजुअली हर शहर अपना मुख्तलिफ आइडेंटिटी रखता है. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सूरा. इसीलिए हम इनको चैप्टर्स नहीं कह सकते, कुरान के वर्सेस नहीं कहते आयात को. मैं नहीं कहती, कम अज़ कम. वर्स हम बोल देते हैं क्योंकि हमारे मुंह पर चढ़ी हुई होती है ये. लेकिन सूरा को मैंने क्या कहा, मैं क्या नहीं कहती, नहीं, चैप्टर सॉरी. तो चैप्टर, आप कोई भी टॉपिक ले लें तो एक चैप्टर दूसरे की तायद करता है, या एक चैप्टर को समझे बगैर आप 1 चैप्टर को समझे बगैर 2 को नहीं समझ सकते, फिर 2 को समझे बगैर आप 3 तक नहीं आ सकते. और चैप्टर्स, आखिरी चैप्टर जो होता है 10 है या 11 है, उसको समझने के लिए आपको पहले चैप्टर से जाना ज़रूरी होगा. जैसे ABC पढ़नी ज़रूरी होती है PhD करने के लिए. लेकिन कुरान का ये मौजज़ा है कि इसकी हर आयत इतनी कंप्लीट है, हर सूरत इतनी कंप्लीट है कि आप एक आयत भी अगर आपके दिल को लग गई है तो आपकी हिदायत के लिए काफ़ी है. हज़रत उमर एक आयत ही सूरत ताहा की सुन के ईमान लाए ना. बहुत से आज के दौर में भी रिवर्टेड मुस्लिम उनसे सुने, उनसे पूछे उनकी ज़िंदगी की स्टोरी, तो कोई एक आयत बताएगा किसी सूरत की. यानी एक चैप्टर तो दूर की बात, एक सूरत तो दूर की बात, कुरान की हर आयत इतनी कंप्लीट है कि अगर वो आपके दिल को छू गई है तो आपके ईमान में वो इजाफा कर गई है. अगर आप मुस्लिम हैं, नहीं तो आपकी हिदायत का बायस बन गई है इफ़ यू आर नॉन मुस्लिम. सो दिस इज़ एक्सप्लेनेशन बिफोर वी गोइंग टू समरी. सूरत आले इमरान. सूरत आले इमरान के 2 मेन टॉपिक हैं, क्योंकि मैं समरी कराने लगी हूँ कि फिर हम सूरत निसा की तरफ चलें. 2 मेन टॉपिक हैं और बाकी सारी सूरत उनके गिर्द है. 101 आयत तक आले इमरान से खिताब है. आले इमरान कौन है? जैसे मैंने आपको बताया, इसका कनेक्शन मैंने कहा था कि इसका सूरत फातिहा के साथ भी है. सूरत फातिहा में क्या कहा गया था? अल्लाह हमें इनाम याफ्ता लोगों में शामिल कर, और हमें शामिल किन में ना कर? जिन पर तू गज़बनाक हुआ, जो गुमराह हो गए, जिन पर गज़बनाक हुआ, उनकी पूरी की पूरी खसूसियात अल्लाह ने सूरत बकरा में बता दी हैं. यहूदियों की, मुनाफिकों की,
اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، یہ صورت ایکسپلین کرتی ہے ان کی خصوصیات، عیسائیوں کی. پوری صورت عیسائیوں سے خطاب ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، مباہلے کی آیات ہے. پہلا نصف اس صورت کا اہل کتاب سے خطاب ہے. اہل کتاب میں سے بھی کن سے؟ صورت فاتحہ کا وہ گروہ جو ضالین ہے، جو گمراہ ہو گیا. اچھا، ہمیں کیوں پوری کی پوری صورتیں، وہ 286 آیات کی ہے، یہ 200 آیات کی صورت ہے، ہمیں کیوں اتنے ڈیٹیل میں مغضوب اور ضالین کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کی طرح یہ خصوصیات ہم مائنیوٹلی ہمیں بتائی گئی ہیں، میکرو لیول پر بھی اور مائکرو لیول پر بھی، کہ دیکھیں ان کے اندر یہ صفت تھی جس نے نقصان پہنچایا، یہ خصوصیت تھی جو ان کی تباہی کا باعث بن گئی. آپ نے کیونکہ مانگا ہے کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا ہے اور ان میں شامل نہیں ہونا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اندر کون سی خصوصیات تھیں جو انہیں مغضوب کر گئیں. ہم نے ان سے بچنا ہے، اس لیے ان دونوں صورتوں میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں. اب اس صورت میں دوسرا پارٹ ہے، میں نے آپ کو کہا سورۃ بقرہ مغضوب کے بارے میں بات کرتی ہے، اور سورہ آل عمران ان کے بارے میں بات کرتی ہے، ضالین. اب ضالین کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا کیا اقسام ہیں، کون کون سا شرک ہے جو انہوں نے کیا اور جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں راستے سے ہٹا دیا، ان سے راستہ کھو گیا. تو ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہم کیا صرف یہ سمجھیں ہمیں یہ کیا آیات اس لیے بتائی گئی ہیں کہ ہم ان سے نفرت کریں، یہودیوں سے یا عیسائیوں سے؟ ہم اپنے تباہی کا ذمہ دار ان کو ٹھہرا دیں، سارا بوجھ ان پہ ڈالیں اور بری الذمہ ہو جائیں اپنے رسپانسبلٹیز کے؟ کیا اس لیے بتائی جا رہی ہیں؟ اب تک ہم قرآن اس لیے پڑھتے رہے ہیں کہ ہم قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں نا، ہمارے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی اس کا اوریجن آ رہا ہوتا ہے کہ یہ آیت تو لگتا ہے اس بندے کے لیے ہے، یہ آیت تو لگتا ہے اس کے لیے ہے، ان یہودیوں کے لیے، یہ آیت کافروں کے لیے، یہ آیت مکہ کے مشرکوں کے لیے. پھر ہم اچھا زیادہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں تو پھر ہم سوچتے ہیں میرے خاندان کا وہ جو فرد ہے نا، لگتا ہے یہ آیت اسی کے لیے ہے. یہ آیت لگتا ہے وہ بد زبان بد اخلاق اس منافق کے لیے ہے جو آپ اپنے معاشرے میں یا خاندان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس انکل کے لیے، اس ہسبینڈ کے لیے، اس وائف کے لیے ہے، اس بیٹی کے لیے جو اپنے والدین کے ساتھ ایسے. زیادہ سے زیادہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی عذاب کی آیتیں ہیں، جتنی بھی برے اخلاق کی آیتیں ہیں، یہ کسی اور کے لیے ہیں. میں تو کیا ہوں، بالکل پاک صاف ہوں. یہ مائنڈ میں آ ہی نہیں رہا ہوتا. آج کے بعد آپ نے اور میں نے یہ سمجھنا ہے ان میں سے ہر آیت میرے اوپر اتر رہی ہے، میرے لیے اتری ہے. اتنا اہتمام کیا گیا، 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل کیا گیا، رمضان کا مہینہ چنا گیا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا جو سید البشر ہیں کہ جن پر قرآن نازل ہو، تاکہ وہ آپ کو ایگزامپل کر کے، پریکٹیکل کر کے دکھائیں قرآن کا. تو ان میں سے ہر آیت میرے لیے ہے، ہر آیت آپ کے لیے ہے، کہ آپ کو یہ آئینہ دکھایا گیا. کہیں یہ خصوصیات آپ کے اور میرے اندر تو نہیں ہے؟ اگر ہیں تو کیونکہ ہمارے پاس لائف ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ابھی ٹائم ہے، ہم نے ان پر کیسے قابو پانا ہے، کیسے ان چیزوں سے نکلنا ہے. سو دس از دا ہول. یہ اس طریقے سے میسج آف انڈرسٹینڈنگ قرآن. اگر آپ قرآن اس طرح سے سیکھیں گے کہ یہ کسی اور کے لیے ہے، تو یقین کریں آپ ڈیلی کا درس لے لیں، آپ ہر جگہ شہر میں جہاں بھی دورہ قرآن ہوتا ہے اس کو اٹینڈ کر لیں، آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی چینج نہیں آئے گی، جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کے لیے آیات ہیں. سورۃ بقرہ تو یہودیوں کے لیے اتری ہے، اس کے چیپٹرز ہیں. سورۃ آل عمران تو عیسائیوں کے لیے اتری ہے، اور سورۃ حج کے بارے میں اگر آیات ہیں تو وہ مشرکوں کے بارے میں، مکہ کے لوگوں کے، وہ پاسٹ میں ہو گئے ان کے بارے میں. تو قرآن قیامت تک کیوں ہدایت ہے؟ یہ قیامت تک کے لیے کیوں گائیڈنس ہے؟ تو یہ کانسیپٹ جب تک نہیں آئے گا کہ یہ میرے لیے ہے اور ابھی اسی ٹائم کے لیے ہے، تب تک آپ قرآن سے وہ فیض نہیں پا سکتے جس کو ہدایت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹیل بیان کرنے کا صرف یہی مقصد تھا، کنیکشن بیان کرنے سے پہلے، سورت کی ڈیٹیل بیان کرنے سے پہلے، اور قرآن کی لرننگ کی روز کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے سے پہلے میں نے یہ باتیں کرنا ضروری سمجھا. اچھا، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکن قرآن جو ہے وہ 13 سال میں نازل ہوا، تو اس کو ہم نے مین 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. میں آپ کو ڈے بائی ڈے روز ڈیٹیل بتاتی رہوں گی. پہلا پیریڈ ہے 1 سے 3 سال، جب آپ نے خفیہ طور پر دعوت دی دین کی. اس عرصے میں نازل ہونے والی صورتیں کہلائیں گی مکی دور کے پہلے حصے کے ساتھ. آپ حصہ A کہہ لیں، B C D کہہ لیں،
4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं हम मक्की दौर को। दूसरा हिस्सा है 4 से 5, 2 साल, जब आपने एलानिया दावत दी। फिर 5 से 10 साल उस एलानिया दावत के नतीजे में जब आपको टॉर्चर शुरू हुआ, पहले बदतमीज़ी शुरू हुई, वर्बल किस्म की, फिजिक, फिर उसके बाद वो बढ़ते 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 फिज़िकल तक पहुंच गई जब मुसलमानों को हिजरतें करनी पड़ी। ताइफ का वाक़या उस अरसे में हुआ, मिराज उस अरसे में कराई गई। तो मेन जो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है 5 से 10 साल, ये 5 साल का पीरियड है। उसके बाद आखिरी हिस्सा है 11 से 13 तक, ये 3 साल का पीरियड है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टॉर्चर बढ़ गया तो आप देखेंगे जो इस अरसे की मक्की सूरतें हैं तो वहाँ अल्लाह का गज़ब, अल्लाह की नाराज़गी, अल्लाह का गुस्सा शो होता है। यानी कि एक बात को करते हुए 10 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं, फिर भी तुम लोग नहीं मान रहे हो। तुम हिदायत का पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे ले क्या रहे हैं? ले तो कुछ नहीं रहे, उल्टा तुम्हारा फ़ायदा करने के लिए आए हैं इस दुनिया में। तुम्हें तारीकियों से, तुम जो बेटियों को दफन कर रहे थे, उन औरतों को निकाल कर माशरे में हकूक़ देने के लिए आए हैं। तुम उनके साथ ये सलूक करते चले जा रहे हो। तो हर हिस्से में सूरतों का मिजाज है। पहले हिस्से की सूरतें इस तरह से हैं कि आप छुप के दावत दे रहे हैं तो सूरत मुज़म्मिल है, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए ओढ़ लपेटने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइंड मेकिंग है, आपको तसल्ली है। और या अय्युहल मुदस्सिर है, इकरा बिस्मि रब्बिक, मतलब वो सूरतें हैं जो आपको इमोशनली अल्लाह से कनेक्शन भी बिल्ड कर रही हैं और आपको एनकरेज भी कर रही हैं। वो बंदा जो अभी दावत का काम शुरू करता है, जो माशरे में इस्लाह चाहता है, जो उसको तसल्ली की ज़रूरत होती है, वो सूरतें उस टाइम के साथ डील करती हैं। दूसरा पीरियड है जब एलानिया दावत दे दी, अपने घर वालों को बुलाया, कोहे सफ़ा पे चढ़ के दावत दी। तो फिर क्या हुआ? फिर मुखालफत आती है। जब अपनों की मुखालफत आती है तो उस सूरत में, उस अरसे में वो सूरतें हैं जो आपको उस टाइम पे तसल्ली देती हैं कि जब आपके अपने भी आपका साथ छोड़ जाते हैं। एक तरफ आप ख़ानदान में आँखों का तारा होते हैं और फिर यकदम आपके साथ सारे आंखें फेर लेते हैं। आपको सोशली सादिक और अमीन कहा जाता है, अपने मुकदमों के फैसले आपसे करवाए जाते हैं। खाना काबा में हिजरे अस्वद आपके हाथ से नस्ब कराया जाता है और फिर अचानक कहा जाता है जादूगर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये तो बहक गए हैं, अकेले जाके गारे हीरा में बैठते थे तो जन्नत का साया हो गए। तो जब इंसान दावत का काम शुरू करता है, माशरे में तब्दीली चाहता है, तो जब उसकी मुखालफत की जाती है तो उस मुखालफत को कंसोल करता है अल्लाह ताला इस अरसे की नाजिल होने वाली सूरतों के ज़रिए। क्योंकि हम से देख रहे हैं कि हमारे साथ कुरान का क्या राब्ता है। ये कुरान अगर मेरे लिए उतरा है तो फिर इसमें मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है। और तीसरे अरसे की सूरतें हैं कि जब आपको फिज़िकल और अब्यूज़ किया जाता है और टॉर्चर किया जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप मूव कर जाएंगे, फिर हिजरतें होती हैं। अल्लाह की ज़मीन वसी है, चले जाएं, हबशा चले जाएं, उन लोगों से मदद ले लें जो आपको, आपकी थिंकिंग को प्रमोट कर सकते हैं। कमज़ोरी की हालत में जब एड ली जाती है तो ये इस अरसे की सूरतें उससे डील करती हैं। और आखिरी अरसा जो है, और फिर हाँ एक और बात कि वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा टॉर्चर बढ़ जाता है, जैसे ही ताइफ का वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद मिराज हुई, फिर अल्लाह तसल्ली देता है कि जब तुम्हें सब छोड़ दें तो याद रखना वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अल्लाह के यहाँ क्या हैसियत रखते हो, तुम अल्लाह की नज़र में क्या मकाम रखते हो, तुम्हें इससे कंसर्न होना चाहिए। ये बात इम्पॉर्टेंट है। बस हमें इन सूरतों में यही सबक नज़र आएगा कि आप लोगों की बातों की परवाह ना करें, लोगों से बेखौफ हो जाएं। जो अल्लाह से डरता है ना, वो फिर किसी से नहीं डरता। मैं जब ये कर रही थी तो मुझे एक बात याद आई कि सूरत निसा और सूरत आल इमरान का कनेक्शन और इनकी समरी, कि आप हर खौफ से काबू पा सकते हैं आप जिसके हैं ना, जो आपका रब है। वो खुद कहता है ना, मैं तुम्हें पालने वाला हूँ, कहता है कि नहीं कहता? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो पहला सबक ही आपको ये पढ़ाता है, अपना तारुफ ये कराता है, मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। तो जो आपका है ना, यकीन करें ज़मीन आसमान उसी के हैं। मैंने ये लिख लिया फिर अपनी डायरी में, जो मुझे कनेक्शन नज़र आया, जो मुझे की वर्ड नज़र आए, तो कोई खौफ उसका हो सकता है कि जो उसका यार हो, जो उसका दोस्त हो, जो उसका वली हो, जिसने ज़मीन आसमान बनाया है, जो पूरी ताकतें रखता है। आप जिसके हैं और जो आपका है, तो ज़मीन आसमान भी उसी के हैं, तमाम मखलूक़ात भी उसी के कब्ज़ा कुदरत में। तो क्या कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है? फिर कोई आपको हरा सकता है? फिर नहीं, फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता।
अल्लाह अकबर। सूरत आल इमरान अगर एक वर्ड में मैं कहूँ, सूरत बकरा एक वर्ड में अगर मैं कहूँ तो वो ईमान थी। दिल के मैटर के साथ डील करती थी। तुम्हारे दिलों को वो लग जाता है, बीमारी लग जाती है, तुम ऐसे हो जाते हो, मुनाफिकत में वो बातें थी। ये अगर सूरत में कहूँ वन वर्ड में तो इस्लाम है। ईमान क्या होता है? आपके अंदर की कैफियत, आपके अंदर कितना है, मेरे अंदर कितना है, ना आप जान सकते हैं ना मैं जान सकती हूँ। लेकिन उस ईमान ने मेरे ज़ाहिर को कितना बदला है, उसको इस्लाम कहते हैं। अगर मैंने अल्लाह को मान लिया है अपना खैर खा, तो फिर मैं ये भी मानूंगी कि अल्लाह अगर मुझे जिस्म ढकने का कह रहा है तो इसमें मेरी बेहतरी होगी। ये वो था ईमान, मेरे दिल की कैफियत, मेरी अल्लाह से मोहब्बत, मेरी अल्लाह से कमिटमेंट। जैसे जैसे वो बिल्ट होती है तो सफ़र शुरू होता है इस्लाम का। आप जब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं, तो फिर आप सफ़र शुरू कर देते हैं अच्छे मुसलमान बनने का। और अच्छे मुसलमान के सफ़र में मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती होती हूँ और आपको भी कहूँगी कि अच्छे मुसलमान बनने के सफ़र में ज़ाहिर बदलने की पहले कोशिश मत करें, क्योंकि ये सफ़र अंदर से बाहर की तरफ है। पहले सूरत बकरा है, बाद में सूरत आल इमरान है। ये कुरान की तरतीब बता रही है कि पहले अंदर बदलेगा, फिर ज़ाहिर बदलेगा। पहले तब्दीली यहाँ आएगी, रोशनी यहाँ होगी, तो बाहर ज़ाहिर खुद ब खुद हो जाएगी। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये तरतीब उल्टी कर दी गई है। हम जो मुसलमान घरानों में पैदा हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारा माशरा एक्सपेक्ट करता है कि हम परफेक्ट मुस्लिम हों, हमारे अंदर शरीयत के अहकामात की बिल्कुल परफेक्शन होनी चाहिए। हम अच्छा मुसलमान उसे समझते हैं। सॉरी टू से, जब वो उस असल मुसलमान से वाह पड़ता है या राह पड़ता है ना, फिर पता चलता है कि वो अंदर से कितना काला है। वो तो अंदर से ईमान से खाली है, वो अंदर से बहुत बड़ा मुनाफिक है। फिर हम रोते हैं। बच्चे में तो कोई शरई ऐब नहीं था जब मैंने रिश्ता दिया था। वो तो तबलीगी जमात के साथ 15-20 साल लगा के उसके पेरेंट्स के गुजरे हुए थे। वो तो सरोज़े लगाने वाला, मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ने वाला, ना कभी उसने ड्रिंक किया। ड्रिंक तो दूर की बात, उसने सिगरेट भी नहीं पी। हमने पूरी तहकीक करा के रिश्ता किया था। सॉरी टू से, आपने ज़ाहिर देखा था, आपके बातिन के साथ, उसके बातिन के साथ आपका वास्ता तो अब पड़ा है। इसीलिए अल्लाह कहता है पहले ईमान। 13 साल ईमान की मेहनत हुई, 13 साल काफिर मारते रहे, हाथ बांध के मार खाई है मुसलमानों ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलवाई है ताकि ईमान बिल्ट हो जाए, अल्लाह के साथ कनेक्शन, यकीन बिल्ट हो जाए। इस्लाम के अहकामात आपको पता है मदनी सूरतों में आए हैं। शराब भी हराम बाद में हुई है, पर्दे के अहकामात भी मदनी सूरतों में आए हैं। जब आपकी मोहब्बत उस लेवल तक पहुंच जाती है, मैं एक बात कहती होती हूँ, हमें हिफ्स भूल जाता है, हमें कुरान भूल जाता है। ज़ाहिरी बात है, याद रखना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो मोहब्बत डेवलप नहीं हुई होती। मुझे एक बात का मैं आप लोगों से आंसर चाहूँगी, बिकॉज ये सवाल मुझे परेशान करता है। क्या महबूब की उम्र, कद, रंग, उसकी पसंद नापसंद हमें भूलती है? भूलती है? क्या उसके लिए हमें हिफ्स करना पड़ता है, किसी क्लास में एडमिशन लेना पड़ता है? मुझे उज़मा से मोहब्बत हो गई है, अगर चले हो भी गई है तो मैं जानती हूँ कि इनका नाम उज़मा है, ये सैयद ख़ानदान से हैं। अच्छा, उज़मा को क्या कलर पसंद है, उज़मा को क्या नहीं है। हम इसको अगर ऑपोजिट जेंडर में भी ले जाएं, मुझे किसी मर्द से भी हो जाती है, किसी मर्द को मुझसे भी हो जाती है, आपको किसी से हो जाती है, तो क्या कभी आपने याद किया, लिस्ट बनाई है, लिखे हैं, पहाड़ों की तरह याद किया है कि उसको क्या कलर पसंद है, ताकि आपको भूले नहीं। अगर उसको ग्रीन पसंद है, उज़मा को ग्रीन कलर पसंद है, तो क्या मैं ग्रीन कलर पहना करूं, मुझे ये याद रहे, मैं उसके लिए हिफ्स करूंगी, मैं उसके लिए रट्टे लगाऊंगी। हम यही कुछ कर रहे हैं। सॉरी टू से, हमें अल्लाह से मोहब्बत पहले करनी थी, पहाड़े याद नहीं करने थे। हमें प्रोनाउंस कैसे होता है इस्लाम, ये नहीं सीखना था। एक जमात है हमारे यहाँ जो लोगों के कलमे ठीक कराती है। कलमे का मफहूम नहीं बताते, वो बताते हैं कलमा प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह, मोहम्मद के ऊपर ज़बर है या ज़ेर है, वो ये बताते हैं। और वो कहते हैं हम बड़ा काम कर रहे हैं, हमने तो बहुत से लोगों के कलमे ठीक करा दिए। हज़रत सलमान फ़ारसी जब इस्लाम कबूल करते हैं, पर्शिया के रहने वाले थे, ईरानी थे, उनकी ज़बान और थी, अरबी नहीं थी। क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलमान
जब तक कलमा ज़ेर ज़बर के फ़र्क के साथ नहीं पढ़ोगे तुम्हें मुसलमान नहीं किया जाएगा। कहा ऐसा? क्या सुहेब रूमी जो रोम से आए थे, और ऑब्वियसली इब्रानी ज़बान होगी या इंग्लिश होगी, जो आज रिफॉर्म होकर इंग्लिश हो गई है उनकी ज़बान, ही वॉज रोमन, तो क्या उनको कहा कि पहले तुम अरबी एक्सेंट सीखोगे तब अल्लाह कलमा कबूल करेगा? हम इतने ज़ाहिर परस्त हो गए हैं कि हम दीन का काम करने वाले, तबलीगी जमात का कोई छोटा काम नहीं है इस पाकिस्तान में। मौलाना तारिक जमील साहब ने जिस तरह लोगों के इखलाक बदले हैं तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन आप ज़ाहिर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक ज़ाहिर बदल रहे हैं। क्या अबू जहल का एक्सेंट ठीक नहीं था? उसे कलमा नहीं आता होगा, आप समझते? उसको सही एक्सेंट के साथ आता था, लेकिन उसके बावजूद उसने नहीं पढ़ा, क्योंकि उसे कलमे का मतलब समझ आता था। कलमे का मतलब कमिटमेंट होता है। आप जब तक मोहब्बत और कमिटमेंट नहीं सिखाएंगे, आप पाकिस्तानी मदरसों में क्या सिखा रहे हैं? खे को हल्क से कैसे निकालना है, काफ को कैसे निकालना है, इस लफ्ज़ के ऊपर ज़ेर आ गई तो ये गलत हो जाएगा, इसके ऊपर ज़बर आ गया तो गलत हो जाएगा। आप ज़ाहिर सिखाते चले जा रहे हैं। इवन के कलमे का, मैंने कलमे की एग्जांपल क्यों दी, कलमे का भी ज़ाहिर सिखा रहे हैं कि ज़ेर के साथ पढ़ोगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ज़बर के साथ पढ़ोगे। कलमा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट क्या है ये नहीं बताया जा रहा। तो सूरत बकरा क्या है? ईमान है। ईमान के सफ़र में अपने आप को टाइम दीजिए, अपने साथ अल्लाह के ताल्लुक़ को, अल्लाह के साथ अपनी मोहब्बत को डेवलप होने के लिए टाइम दीजिए। जब वो मोहब्बत डेवलप हो जाएगी तो फिर आप शरीयत को भी फॉलो करना शुरू कर देंगे, फिर आपका ज़ाहिर में आप पर्दा करना भी शुरू कर देंगे, फिर आप ख़ुद को ढकना भी सतर के मुताबिक शुरू कर देंगे, फिर आपको जो हराम चीज़ें हैं उनमें इंडल्ज होते हुए अल्लाह याद आएगा। बस यही सफ़र है। इसी तरह से अपना सफ़र शुरू कीजिए। अगर कुरान इस तरतीब के साथ मेरे पास मौजूद है कि सूरत बकरा पहले है, ईमान की बात पहले है, दिलों की बात पहले है, जिस्म की बात बाद में है, तो हमने जिस्म को बाद में लाना है, ज़ाहिर को बाद में देखना है, और ज़ाहिर के मुताबिक लोगों को जज कभी भी नहीं करना। इट्स नेवर गोना हैपन। तो ये सूरत क्या है? इस्लाम है, आउटर मैनिफेस्टेशन ऑफ ईमान है। जब ईमान अंदर होता है तो वो बाहर से कैसा दिखता है। पहले आपने गरीबों के हकूक़ का ख्याल करना है, कमज़ोरों के हकूक़ का ख्याल करना है, फिर जाके कोशिश करनी है। जैसे मैं कहती होती हूँ कि अल्लाह क्यों कहता है मैं रमज़ान में कुरान लाया? अल्लाह चाहता है हम अपनी ज़िंदगी रमज़ान जैसी गुजारें। रमज़ान में हम क्या हलाल से भी, रोज़े की हालत में किसको अवॉइड कर रहे होते हैं? पानी पीना हलाल है, खाना खाना हलाल है, ये सारी चीज़ें हम अवॉइड कर रहे होते हैं। क्यों? कि अल्लाह राज़ी हो जाए, इसी तरह हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। जब हलाल को अवॉइड इंसान कर सकता है तो हराम को अवॉइड करना कितना आसान है फिर उसके लिए। ये प्रैक्टिस है। तो ज़िंदगी गुजारें रमज़ान जैसी, ताकि मौत आपको ईद जैसी आए। अगर हम ज़िंदगी ईद और रमज़ान जैसी नहीं गुजारते, अल्लाह के खौफ में नहीं गुजारते, सिर्फ अल्लाह के खौफ में, मैं यहाँ वर्ड सिर्फ का इजाफा हमेशा करती होती हूँ, क्योंकि हम अल्लाह से भी डरते हैं और दूसरे लोगों से भी डरते हैं, माशरे से भी डरते हैं। ये भी हमें दबो गया है। जब हम सिर्फ अल्लाह से डरेंगे तो फिर हम किसी से नहीं डरेंगे। जो एक दर का नौकर होता है ना, फिर वो दर दर की नौकरी से बच जाता है। तो ईद जैसी मौत हम सब चाहते हैं, कलमे पर मौत आए, सजदे की हालत में आए, कुरान पढ़ते हुए आए, मदीना में आ जाए, लेकिन हम सब ज़िंदगी रमज़ान जैसी गुजारने को तैयार नहीं है। तो ये रमज़ान का महीना है, ये वो महीना है जो हमें बताता है कि सिला रहमी करनी है, अपने जायज़ हकूक़ भी इसार कर देने हैं। एक अपनी भूख का, जब आप भूखे होते हैं तब आप ख्याल कर सकते हैं, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता आपको ख्याल नहीं होता। वो लोग जो भूखे हैं, वो जो घरों से निकाले गए हैं, जो कमज़ोर हैं, जो इतना नहीं कमा सकते कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें, आप ही के माशरे में हैं, हमारे माशरे में हैं। मुझे तो वो लोग नहीं भूलते जो अपने बच्चों समेत खुदकशियाँ कर लेते हैं कि खाने को नहीं है। मुझे तो वो माएँ, वो वालिदैन नहीं भूलते जो अपने बच्चों का टैग लगा के फॉर सेल का खड़े होते हैं कि भूख से मर जाने से बेहतर है बच्चा बेच दिया जाए। क्या ये चीज़ें हॉन्ट नहीं करती हमें? ये रमज़ान तो उन्हीं लोगों के साथ टाई अप होने का महीना है, आपके अंदर सेल्फलेसनेस पैदा करने का महीना है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ ताकि जब आप सेल्फलेस हो जाएं,
ताकि जब आप सेल्फिश ना रहें तब आप अल्लाह के अहकामात को परसीव कर सकेंगे. So there is a very strong connection between these surah, and there is very strong connection between Quran and Ramzan. अच्छा, मैंने आपको कहा कि आधा हिस्सा इसका क्या है, अहले किताब से खिताब है, और सूरत आल इमरान का बाकी का आधा हिस्सा जो है वो ग़ज़वा उहद के बाद होने वाली कमेंट्री है. ग़ज़वा बदर के बाद क्या हुआ था, ग़ज़वा उहद के बाद 70 मुसलमान शहीद हुए थे, जिनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जान से प्यारे चचा, जो एक हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए, जो क़यामत तक के लिए सैयदुश शुहदा हैं. तो एक मुसलमान जब उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत होती है, जब वो 13 साल ईमान पर मेहनत कर चुका होता है, वो अपने गम के साथ कैसे डील करेगा, ये अल्लाह ने बताया इस सूरत में. तो सूरत आल इमरान की समरी में से कुछ आयत हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी. सूरत बकरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला इनमें रसूल भेज जो इनको तेरी आयतें पढ़ के सुनाए. इस सूरत में कहा गया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, मोमिनीन पर अल्लाह ने एहसान कर दिया है, इस बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका रसूल बना के अपॉइंट किया. 164 आयत. वहाँ हज़रत इब्राहीम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इनमें एक रसूल भेज जो इन्हें तेरी आयतें पढ़ के सुनाए. खाना काबा तामीर करते हुए वो दुआ कर रहे हैं. इस सूरत में उनकी दुआ को अल्लाह ने आंसर करते हुए बताया, अल्लाह ने एहसान कर दिया है तमाम मैनकाइंड पर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया है. यतलू अलैहिम आयातिही, जो हज़रत इब्राहीम ने मांगा था उन्हीं अल्फाज के साथ उनकी दुआ को जवाब दिया गया. सूरत बकरा में अल्लाह ने कहा था ना, मुझसे मांगो मैं दूंगा, मुझसे सवाल करो, मेरे बंदे जब भी सवाल करेंगे मैं दूंगा. तो जब उन्होंने सवाल किया उन्हीं अल्फाज के साथ, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, उन्हें पाक करता है, उन्हें उनके जंग धोता है, उनके दिलों के मैल, हसद, बुग़्ज़, नफ़रत धोता है. व युअल्लिमुहुमुल किताब, उन्होंने किताब की तालीम देता है, शरीयत भी सिखाता है, वल हिकमत, और तरीक़त भी सिखाता है. व इन कानू मिन क़ब्ल, और इंसानियत उससे पहले कहाँ थी, लफ़ी ज़लाल मुबीन, बड़े दूर गुमराह हो चुके थे, लॉस्ट हो चुके थे. हम लॉस्ट कॉज थे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दोबारा रिवाइव किया, हमें ज़िंदा किया है. 164 सूरत आल इमरान. हाँ, और इसी सूरत की आयत है जो मुझे बहुत पसंद है, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाके. वो वक्त याद कीजिए, उस वक्त को मैनिफेस्ट कीजिए, उस वक्त को इमेजिन करके लोगों के सामने बयान कीजिए. जब आओ मिलकर सोचते हैं उस वक्त के बारे में, जब मरियम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने कहा, क्या कहा, इन्नल्लाह अस्तफ़ाके, ए मरियम तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया है, व तहरके, और तुम्हें पाक कर दिया है, वस्तफ़ा के, और तुम्हें चुन लिया. 2 बार इस्तफ़ा हुआ है. किस पर चुना है, अला निसाइल आलमीन, तमाम जहान की औरतों पर चुन लिया है. सूरत आल इमरान के बाद कौन सी सूरत आ रही है, निसा. हज़रत मरियम तमाम जहान की औरतों में से चुनी गई, और तमाम जहान की औरतों को कैसा होना चाहिए वो सूरत निसा बता रही है. तमाम जहान की औरतों के साथ क्या सलूक होना चाहिए वो सूरत निसा बता रही है. और अल्लाह यहाँ बता रहा है कि अल्लाह बायस्ड नहीं है, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं. ये नाम बता रहा है कि अगर एक औरत चुनी जा सकती है तो आप और मैं क्यों नहीं. अल्लाह कह रहा है मुझे तो ये खसूसियात चाहिए मरियम जैसी. अगर ये खसूसियात तुम्हारे अंदर हैं तो तुम दुनिया के लीडर हो. कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मर्द हो या औरत हो, तुम्हारे रब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये बात बताई जा रही है. 642 नंबर आयत ऑफ दिस सूरा.
अच्छा, और जो इम्पोर्टेंट आयात हैं वो मैंने उनको हाईलाइट किया है ताकि मैं उनकी समरी करा के फिर हम सूरत निसा की तरफ चलें। हाँ, आयत नंबर 103, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये आयत कंप्लीट नहीं हुई, इसके आगे इसका पोर्शन और भी है। 102, 103, 104 तक कंप्लीट होती है। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और किस में ना पढ़ो, तफरके में ना पढ़ो। सूरत बकरा में क्या कहते हैं अल्लाह पाक, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली। अल्लाह कहता है मुसलमान वो होता है, ईमान वाला वो होता है जो रसूलों में भी फ़र्क नहीं करता। अल्लाह कह रहा है रसूलों में भी फ़र्क नहीं करना। मसालिक में फ़िरक़ेबाज़ी फिर तो बहुत मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। जब रसूलों में हमें सबक पढ़ाया कौन सा गया कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रसूल, ईमान उसका कामयाब होगा, ईमान उसका अल्लाह को कबूल होगा जो रसूलों में भी फ़र्क नहीं करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे दर्जे में किसी रसूल से ना बढ़ाना, हत्ता कि यूनस बिन मती से भी ना बढ़ाना, क्योंकि यूनस अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनसे गलती हुई और अल्लाह ने उसको नोट करके, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद वो पहले पैगंबर हैं कि उस गलती को नोट किया, उनके इस्तग़फ़ार को नोट किया, कुरान का हिस्सा बनाया। तो ये भी ना समझना कि मैं यूनस से भी बेहतर हूँ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं। जब सूरत बकरा में ये कहा जा रहा है कि रसूलों के दरमियान भी फ़र्क नहीं करना कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ज़्यादा बेटर हैं। ईसाई और यहूदी यही करते चले आ रहे थे। हमें तो ना मग़ज़ूब होना है ना ज़ालिन होना है, तो हमें ये नहीं करना। अल्लाह की कनेक्शन को मजबूत पकड़ना है और अल्लाह का कनेक्शन कुरान है और कुरान का मैसेज है रसूलों में फ़र्क नहीं करना। तो आप मसालिक में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि शिया जो हैं वो बिदती हैं? आप कैसे कह सकते हैं बरेलवी तो बिदती हैं? हम सब कुछ हैं, हम बरेलवी भी हैं, हम शिया भी हैं, हम सुन्नी भी हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम अहल हदीस हैं, हम तबलीगी जमात वाले हैं, हम जमात इस्लामी वाले हैं। अगर हम नहीं हैं तो न मोमिन है न मुसलमान है। अल्लाह ने तो हमारा नाम मुसलमान रखा था। जब आप अल्लाह के बुक के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर बताई है। जब सहाबा ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी क्या है, अल्लाह का कनेक्शन क्या है या रसूलुल्लाह, अल्लाह कह रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, चिमट जाओ अल्लाह के कनेक्शन के साथ। तो हम किस चीज़ से चिमटे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की किताब अल्लाह का कनेक्शन है, अल्लाह की रस्सी ये किताब है। आप कुरान की तरफ आएंगे तो कुरान आपको फ़िरक़ाबाज़ी में मुलव्वस नहीं रहने देगा, क्योंकि कुरान आपको बता रहा है कि आप पैगंबरों में फ़िरक़ाबाज़ी नहीं कर सकते। एक ही मुसलमान, एक ही अल्लाह और एक ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों के दरमियान आप फ़िरक़ाबाज़ी कैसे कर सकते हैं? क्या कोई रूम है आपके पास अपनी फ़िरक़ाबाज़ी को जायज़ समझने के लिए, हक़ पर समझने के लिए कि मैं अहल हदीस हूँ तो मैं ठीक हूँ? जो रफ़ा यदैन नहीं करता उसकी नमाज गलत है, जो मज़ारों पर जाता है वो तो मुशरिक है, उसको तो मैंने दीन से निकाल देना है। ये खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ते हैं, ये कुंडे खाने वाले हैं, ये तो गलत है, ये तो बिद्दती हैं। हम हर एक पर ये फतवा लगाने को तैयार हैं कि वो मुझसे कमतर है, और शैतान ने सिर्फ यही कहा था कि इंसान मुझसे कमतर है। दिस इज द बेसिक गलती जो हम करते चले जा रहे हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये की मैसेज है इस सूरत का। और अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं 104 नंबर आयत में, 105 में 4 है, वल तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर। कनेक्शन बता रही हूँ सूरत बकरा के साथ, इसको याद रखिएगा। वहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम अपॉइंट हो गए हो, आज किबला बदल गया। दुनिया की लीडरशिप यहूदियों से, ईसाइयों से, तमाम जो दुनिया में मौजूद अक़वाम से लेकर आज तुम्हें लीडर बना दिया गया। उसके लिए तमगा तुम्हें मिल गया कि किबला अब ये वाला मरकज़ होगा। इस सूरत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम में एक उम्मत ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो 105 नंबर आयत में अल्लाह कह रहे हैं, जो बुराई की से रोके और अच्छाई की दावत दे। हमने इसको ये समझा कि सिर्फ बुलाना, ज़बान से बुलाना है, अच्छे कामों का हुक्म दे, बुरे कामों से रोके, ये हैं कामयाबी पाने वाले। 110 नंबर आयत में, हाँ 105 देखें ना पहले जी, 104 105 देखें पहले।
110 में ही 3-4 आयतों के बाद अल्लाह खुद कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, हमारी अपॉइंटमेंट हो गई। अल्लाह कह रहा है ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद क्योंकि अल्लाह जो चाहता है वो कर देता है। सूरत यासीन में अल्लाह कहता है वो सिर्फ कुन फरमाता है और वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह ने जब आपको किबला आपका तब्दील कर दिया तो आपका माइंड बन जाना चाहिए था कि अब आपकी अपॉइंटमेंट होने वाली है। जब आपको जॉब का लेटर मिला है वो ये है 110 नंबर आयत, कुंतुम खैरा उम्मतिन, आज दुनिया के रिस्पॉन्सिबल तुम हो, लीडर तुम हो। और ये लीडर की खसूसियात तुम्हारे अंदर क्या है? सबसे बड़ी, तुम जुल्म होता हुआ देखोगे नहीं, तुम हर कमज़ोर की मदद करोगे, तुम हर पिसे हुआ को, हर वो लड़की, हर वो बच्ची जो दफन हो रही है, हर वो बच्ची जो रेप हो रही है, हर वो बच्ची जिसको वरासत से महरूम किया जा रहा है, हर वो बच्ची जिसको हक महर से महरूम किया जा रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका हक महर खाया जा रहा है, तुम अपॉइंट हो गए हो कि उसको उसके हकूक़ दिलाओगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये टास्क हमें असाइंड हुआ है, जो सूरत बकरा में बताया गया था, हमें मैनिफेस्ट हुआ था सर, सिर्फ उसका सर्कुलर जारी हुआ था, आज हमें उस कुर्सी पर बिठा दिया गया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो। तुम इस दुनिया में, तुम इस प्लेनेट पे बगैर मकसद के नहीं आए हो। अल्लाह ने तुम्हें बाय पर्पस भेजा है और अपने लिए नहीं आए हो। अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपनी कार, अपने बच्चे, अपने वालदैन, अपना कुंबा, इसके लिए नहीं आए हो। तुम्हें तो भेजा ही कमज़ोरों के लिए गया है, तुम्हें तो भेजा ही पिसे हुओं के लिए गया है, गिरे हुओं को उठाने के लिए आए हो तुम तो यहाँ पर। ये है वो सूरत आल इमरान के लेसन जिनको मैं आगे आपको उनके साथ भी टाई करूँगी। सूरत आल इमरान 200 आयात है, 2 हाफ हैं। पहला हाफ मैंने आपको बताया कि अहले किताब के साथ बात है, और दूसरा हाफ उनको एड्रेस है, उनकी खसूसियात हमें बताएगी। दूसरा हाफ ग़ज़वा उहद के बाद जब मुसलमानों को शिकस्त हुई ऑलमोस्ट, उसके साथ डील करता है। अब चलते हैं सूरत निसा की तरफ।